تھا، اس خواب کی تکمیل ہے جو ایک ماں نے دیکھا۔ محمودہ سلیم کے اٹھائے گئے اقدامات صحت اور تعلیم کے میدان میں بہتری کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی محنت نے بے شمار زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لائی ہیں۔ محمودہ سلیم کی لگن، ایمانداری اور محنت قابل تعریف ہے۔ ان کی تمام تر خدمات ملک کے غریب اور نادار لوگوں کے لیے وقف ہیں۔ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے بچوں کو مستقل بنیادوں کی فوڈ ہیلپ اور تعلیم کی سہولت مفت فراہم کرنے کے لیے ایک تاریخی جذبے کے تحت کام کر رہی ہیں۔ محمودہ سلیم ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ معذور لوگوں کو ویل چیئر کی فراہمی، بے شمار بلڈ بینک اور کئی میڈیکل کیمپس کا انعقاد کر چکی ہیں، جس سے پاکستان کے دیہی اور شہری علاقوں کے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ بے شمار نوجوان بچیاں فوزیہ امیر کی محنت سے اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں۔ محمودہ سلیم کا اگلا ہدف 200 بیڈ کے اسپتال کے ساتھ ساتھ ایک بہترین لیب کا قیام ہے تاکہ مریضوں کی درست تشخیص عمل میں لائی جا سکے۔ سندھ کی ریتلی زمین پر لگائے گئے ٹیوب ویلز نہ صرف زمین کو بلکہ لوگوں کے خوابوں کو بھی زرخیز کر رہے ہیں۔ آئیے اس تاریخ میں محمودہ سلیم کا ساتھ دیجیے۔ زبردست خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آپ کی بھرپور تعلیم میں فوزیہ بھی سفر جو ہے آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ ہمارے کا بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ یہاں تشریف لائے۔ اپنے تئیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی جیتا ہے، کوشش کریں کہ کسی کے لیے اس طرح سے جیے کہ ساری زندگی اس کی یاد میں شامل ہو جائے۔ تو بڑی خوبصورت باتیں اس بیریکیڈ کی آپ نے کی ابھی یہاں پر۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ٹل ڈیتھ ان کے ہاتھ میں کتاب ہوا کرتی تھی، اور جب تک وہ پورا اس کو پڑھنے کے بعد ٹک کر کے ہمارے لیے باقاعدہ وہ چھوڑا کرتے تھے کہ آپ نے یہ بک ختم کر کے اور پھر میرے ساتھ بیٹھ کے اسی طرح ڈائننگ ٹیبل پر ساری کانورسیشن کرنی ہے۔ میں لو دس کہ پیرنٹس کے ساتھ جو آپ کی یہ ایفیلیشن ہے اور یہ بکس کو پیار اور محبت سے پڑھنے کی روایت، یہ واقعی ہی سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ آج کل کے پیرنٹس جو ہے، میں یہ کہوں گی، ابھی اگر ہمارا بچہ جسٹ آ کر کے بیٹھا ہے، ہم نے اسے فوراً ایون دو کہ اس نے کھانا کھانا ہے نا، تو ہم نے اس کے ہاتھ میں ٹیب دے دیا ہے، اس کے بعد جا کر کے اس نے کھانا کھانا۔ تو جب ہم نے اس کی بیسکس میں ہی آئی اے اور کمپیوٹر اور یہ سب چیزیں ڈال دی ہیں، تو بکس کی طرف وہ کیسے جائے؟ تو کوشش تو ہم یہ کریں گے کہ ابھی بے شک بچوں کا یہ شوق ہے، کمروں کے اندر ان کے بیڈ روم میں اس کے کہیں نہ کہیں کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ زیادہ برڈن ہو یہ اس لیے بھی فیل کرتے ہیں کہ وہ اسکول جا رہے ہیں تو بھی ان کے پاس اتنا بڑا بیگ ہے، لیکن بہرحال پیار محبت کتاب کے ساتھ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں کہوں گی کہ اس کا آغاز جو ہے نا وہ پیرنٹس کرواتے ہیں۔ ٹیچرس جو ہیں وہ اسے جب وہ ٹیچرس کے پاس ہوتا ہے تو بکس کو وہ اوور برڈن لے رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں بس پڑھ رہا ہوں تو پیرنٹس کے لیے کوئی احسان کر رہا ہوں۔ وہ جو ایک پیار محبت کیئر جو پیرنٹس کی طرف سے بچوں کو ملتا ہے نا، پھر وہ اس کو لے کر کے اسکول میں آتے ہیں، اور وہ پیار جو ٹیچر پھر اس کو آگے دیتا ہے، وہ جا کر کے آپ کی بیس اور آپ کی خوبصورتی وہ بناتا ہے۔ اور میرا ہم نے چونکہ انہیریٹلی، میرے فادر جو تھے وہ آرمی میں آفیسر تھے ماشاء اللہ، جب وہ وہاں سے ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی ٹل ڈیتھ وہ ہمیں واقعی ہی کتابوں سے محبت کرنا، نیوز پیپر کا ایک ایک کالم جو ہوا کرتا تھا، ہمارے لیجنڈ نو ڈاؤٹ یہ ہمارے گھر کے جو ہے نا وہ مطلب اس طرح سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ زبردست انسان، اچھی کچھ چیزیں ویژولی دیکھنے کے بعد جتنا ہماری زندگی افیکٹ کرتی ہے، تو کچھ لوگ وہ بھی آپ کی زندگی میں موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو۔ تو ہمارے والد صاحب جو تھے ان کے کہنے پر یا ان کے نقش قدم پر آج بھی ہم
किताब भी पढ़ते हैं अपने बच्चों को, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो प्ले ग्रुप से लेकर ग्रेड 8 तक बहुत सारी किताबें मैंने राइट डाउन की, जिसके नाम इस्लामिक स्टडीज़ है, इंग्लिश है, और ये जो हम लोगों ने इदारे बनाए उसके अंदर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स मौजूद है। मैं चाहूँगी कि वो ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये उस सूरत में भी कायम रहता है जब हम बच्चे को हम इतने प्यार से और इतने लविंग वे में स्टोरी या कुछ इस तरह से बताते हैं, और जब तक हम उन्हें कोई चीज़ दिखाते नहीं है ना, तो देखने से ज़्यादा लर्न करते हैं। प्यार तो करना ही है, और वो जब किताबों से हो तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। हम लोगों ने जो किताबों में सीखा है, जो अपने बड़े बूढ़ों से लर्न किया है, उसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अभी इस वक्त मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुदस्सिर वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं हम। एजुकेशन तभी बेहतर हो पाएगी जब हेल्थ आपकी बेहतर है। हमने हेल्थ से स्टार्ट किया था कि अपनी हेल्थ बेहतर होगी। बच्चों के लिए अपने स्कूल के अंदर फ्री मेडिकल कैंप स्टार्ट किए। किसी बच्चे को खून का प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को ब्लड का प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को, यानी हम बच्चे पेरेंट्स जो है वो बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता ड्यू टू लेक ऑफ फंड्स वो बहुत सारी चीज़ों में बच्चे लेक कर रहे होते हैं। तो हमसे जहाँ तक हो पड़ा, हमसे जो बन पड़ता है, हम कोशिश करते हैं कि स्कूल्स में बच्चों को सबसे पहले उनकी हेल्थ पे फोकस करें, उसके साथ साथ फिर हम इसी तरीके से उनको वीकेंड पर स्टोरीज बाकायदा उन्हें बुक्स के साथ, और फिर जो स्टोरी हम उनको दिखाते हैं वो स्टोरी हम उन बच्चों को देते भी हैं कि आप लोगों ने इसे पढ़कर आना है। फिर इसके बारे में वीकेंड पर उनके साथ वो गेम्स की जाती हैं, उनके साथ वो शेयर की जाती है, फिर एक्साइटेडली बताते हैं। इवन दो मेरे कैंपस की जो आया जी है, शी इज सिटिंग देयर, शी लव्स टू द किड्स, वो उन बच्चों से स्टोरी सुन भी रही होती हैं, उन्हें वो बाकायदा उसे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि प्यार आपका प्ले ग्रुप से स्टार्ट है। ये नहीं है कि हमने किताब दोस्ती, जिसका हमारी अभी एक बड़ी प्यारी लड़की ने कहा कि मैं बुक लिखती हूँ तो उसके मुझे ऑडियंस चाहिए, वो ऑडियंस ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। वो प्ले ग्रुप से मेरा ऑडियंस बनना शुरू हो गया जब उसने मुझे लव किया, जब उसने मुझे केयर किया। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो किताबों से हमने सीखा हम उसे डिलीवर करते जा रहे हैं, वो जहाँ तक हमसे बन पड़ा वो हम डिलीवर करेंगे एक छोटे से अबाबील की तरह। तो आप हमारा काम भी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी नुमान आपका बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम चलते चलेंगे, जो भी हमसे अच्छा अच्छा काम होता गया। फौजिया मीर साहब जो है अपने ख्यालात का इज़हार करी थी और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। ये घर से ही तरबियत होती है, जो बच्चे के अंदर किताब का जो रुझान है वो देखने में आता है कि उसको प्रैक्टिकल वो करता है। और जैसे जो लिबास है ये आपको ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत बनाता है, लेकिन किताब जो है वो आपको बातनी तौर पर अंदर से आपको वुसअत फराहम करती है। किताब से दिल लगाइए। और तहजीब हाफिज साहब के अशार पेश करता हूँ, एक दोस्त ने फरमाइश की है तो वो मैं सुना देता हूँ। तो उसके बाद लिविंग लेजेंड हमारे राशि महमूद साहब वो किताब करेंगे। कहते हैं गलत निकले सब इरादे हमारे, के दिन आए नहीं अच्छे हमारे, सफर से बाज रहने को कहा है किसी ने खोल कर तस्मे हमारे, और हर एक मौसम बहुत अंदर तक आया खुले रहते थे दरवाजे हमारे। और कहते हैं कि बहुत जबरदस्त बात है, कहते हैं कि यकीन आता नहीं अगर हम पर कहीं लगवा लो अंगूठे हमारे। तहजीब हाफिज साहब के खूबसूरत अशार है। तो हमारे जो लिविंग लेजेंड है वो लास्ट हमारे जो आज के गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, किसी तारुफ के बता दिए, राशिद महमूद साहब। टीवी, रेडियो, फिल्म, ड्रामा, किसकी मैं बात करूं, हर जगह जो है नुमाया खिदमात हासिल किए हुए हैं। खुद भी जो है बहुत जबरदस्त घराने से ताल्लुक रखते हैं, अदबी इल्मी सकाफती घराना है। उसी लेगेसी को जो है वो आगे ले करके जो है वो चल रहे हैं। और माशाल्लाह आपके सामने ही है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं इनके हवाले से कुछ बात कर सकूं। तो आपकी भरपूर तालीम में लिविंग लेजेंड राशिद महमूद साहब, प्रेशर परफॉर्मेंस। नुमान, थैंक यू वेरी मच। लाइब्रेरी डिफेंस बहुत शुक्रिया, यहाँ की तमाम अहबाब इख्तियार और ख़वातीन और हज़रात, माशाअल्लाह मेरी लाइब्रेरी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, मेरी बड़ी बैठी हैं, पहले की बेटियाँ आप भी बेटी हैं। मैं बाबा हूँ, फुल बाबा हूँ, मानता नहीं हूँ। आज मैं यंग हूँ,
किताब की बात हुई, एक शेर मुझे ऐसे बसवीज तस्करा जान साहब याद आ जाए कि गाहे गाहे उसे पढ़ा कीजिए, गाहे गाहे उसे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। कमाल। आज इस तेज रफ्तार दौड़ में इकोनॉमिकल इंसेंटिव जो है उसने इस कदर अनड्यू तेजियां हमारी जिंदगी में दाखिल कर दी हैं, उस तेजी की दौड़ में हम हुस्न रफ्तार भी भूल गए, हुस्न अख्तार भी भूल गए। अब्बा अभी मलेशिया की फ्लाइट से आके उतरे और साथ ही अम्मी से कहा जा रहा है कि वो मेरे परसों के लिए बैग तैयार कर दो, मुझे अगली फ्लाइट मेरी। बिजनेस हमने अपने बच्चों को टाइम देना खत्म कर दिया। गाड़ी भी ले दी मैंने, घर भी बना दिया, एक मंथली पैकेज भी उसको दे दे कि यार जो तरह आपका वो वक्त कहा गया जो सबसे कीमती जो आप अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। आज का अलमिया किताबों से दूर, अपनी अख्तार से, ये सिर्फ और सिर्फ ये उस आफ्टर इफेक्ट है जो हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। किताब जो है हमारे बच्चों को गूगल अलैहिस्सलाम पे बिलीव ज्यादा पक्के हो गए, अब्बा पे नहीं है, अम्मा पे नहीं है, किताब पे नहीं है। किताब जो है गूगल अलैहिस्सलाम जो कुछ हमें फीड कर रहा है उसमें आसमानी सहीफा कहीं नहीं है। उसमें जान साहब की बात है, उस बेटी की बात है, इस बेटी की बात है, मेरी इसकी और हमसे पहले हद की तमाम लोगों की बातें हमने अपनी जिंदगी के निचोड़ उसमें फीड किए, वो आप क्लिक करते तो आपको मिलता है। किताब जो है वो आपको इस लम्हा मौजूद से आशना रखे हुए, जो जो कुछ उसमें दे दिया गया है, जहाँ वो समझ पे ख़त्म हो रही है, लिखारी और आदमी जो पहले हुनर हैं वो उसी इंटरप्रिटेशन को और वाइड एंगल करके किताबों में दिखा रहे हैं। किताब पढ़ेंगे तो आप उससे अगले सफ़र में जाएंगे ना। गूगल अलैहिस्सलाम में एक फाइनल पंच है, उसमें नहीं कुछ नहीं, जो फीड हो गया वही है। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है छोटू की उसको सुन के, कीप इट अप एंड कैरी ऑन। इसके बाद तुमने बड़े होके और अभी बहुत कुछ लिखना है, बात है ना, शाबाश। किताब जो है वो हमारे माशरे से बिल्कुल निकल गई। मेरी जिंदगी, मेरा शौक है किताब। ई लाइब्रेरी, हमारे सरकार की लाइब्रेरी में पिछले दिनों को तकरीबन 4 लाख रुपए, मेरी सारी जो पैसे अपने बच्चों के उस चुगल से मेरे पास बचते हैं उसमें मेरी हॉबी है किताबें। एक तो मुफ्त मिलती है मुझे, जो लिखी जाती है वो मेरे पास फौरन आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर भी खरीदता हूँ। मैंने कोई राउंड अबाउट क्लासिकल लिटरेचर दुनिया भर का कुछ 4 लाख रुपए को पढ़ चुका हुआ, कई बार पढ़ चुका हुआ था। मेरे लिए वो सिर्फ रखी हुई, वो मैंने सारी की सारी ई लाइब्रेरी में जाकर उनको दिया है, अभी मजीद भी स्टैंड में रखी। लेकिन हमारे यहाँ वहाँ की जो अरबाब इख्तियार रखे जाते हैं वो सिर्फ जॉब पे आए हुए हैं, वो क्रिज्मा या वो पेशेंस उनके अंदर नहीं है कि यहाँ बैठ के यार तो रब भी राजी रख लेगा, अपने आप को भी राजी रख लेगा और अपनी नेशन को भी राजी कर सकता है। हम सिर्फ वो एक सेट लगाया, वो कंटेंट्स वो नहीं है जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ। हम जब तक अपनी ज़मीन से, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपनी अख्तार, अपने लोगों से और अपनी जन्मभूमि से, अपने पाकिस्तान से नहीं जुड़ेंगे, हमारी पहचान की शनाख्त ये है। हमें दूसरे की बीवी मेरी बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमेशा मुझे अपने दोस्तों की बीवियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है। ये हमारा माइंड सेट है, हम फैक्ट्स बिलीवर नहीं है। अल्लाह मियां ने हजरत आदम जो पहला ह्यूमन बीइंग था उसको जन्नत से जमीन पे उतार दिया। वाई एक ऐसी शिक थी जो आइन की बहुत हम जन्नत का भी आइन की बात कर रहे थे, उसमें एक शिक थी जिसको नहीं छेड़ना था, बाबा जी ने छेड़ दिया, उनका चलो। तो मेरे रब ने सबसे पहले ह्यूमन बीइंग पे ये फिजिकल इम्प्लीमेंट्स कर दी कि तेरे एक्ट पे तेरा रिएक्ट जो है ना वो होगा। सदियाँ गुजर गया माल के ख्वाबों में, वो मैंने बीजा ही नहीं है। जो याद रखा जाने के लिए बड़ी कोशिश है, मुझे ये मैंने ये कर दिया, मैंने फला, मैं शजर की मानी तो
लगाए मेरे मुल्क में 76 बरस में बहुत सारे इश्तिहार लगाए गए, लेकिन उसकी छाँव भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे नहीं थी। शजर जो होता है ना, उसकी छाँव सबके लिए थी। वो ना तो हसन नस्ल पूछता ना रंगो नस्ल पूछता। फैक्ट्स बिलीवर नहीं है। अपने बच्चों को वक्त दीजिए और किताब की तरफ माइल कीजिए। इससे बड़ी आपके लिए ग्रूमिंग की दूसरी दुनिया में और कोई चीज़ ही नहीं है। आपको लम्हे मौजूद से शरासा रखती है किताब, वरना अखबार भी अब हमारे यहाँ लिटरेचर भी जो है वो भी ऐसी ऐसी किताबें लिखी। जो मेरे बहुत नामवर शायर एक मेरे दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ज़मीन पे किताब रखे तो इस छत से भी ऊपर तक वो फाड़ के इतनी किताबें लिखती है। कुछ बरस पहले हम एक सेशन में थे वहाँ, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये क्यों किताब के क्या मनवाना चाह रहे थे, दुनिया मान नहीं रही थी। क्यों किताब कंपैक्ट बात रखो, कूजे में दरिया बंद करो। लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं कि आपके 16 वॉल्यूम पढ़ते रहे वो। हम एक डराने के लिए भी किताब पे किताब लिख के चले जा रहे हैं। बड़े लोग जिनके तो 100 सफ़े की किताबें हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आज भी हम 200 साल पहले की कही हुई बात की कोटेशन करते हैं। किताबें पढ़िए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को। हमने इतनी किताबें बच्चों पे लाद दी है। अब ये टेक्नोलॉजी है, रोज बच्चा एक प्रिंट आउट निकालता है, 3 महीने के बाद वो उसको स्टिच किया और गया, मेरा सेमेस्टर हो गया और अब अगले 4 लाख के चक्कर में के दौरान फैक्ट्स बिलीवर नहीं है, गिमिक्स में ज्यादा हमारा हो गया। हम मदारियों वाली नेशन हो गए। उसके रोज सबूत अब आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। फैक्ट्स जो है उससे डिनाइल है। जब तक हम हकीकत पसंद नहीं होंगे इस तरह की इफ्तराएं जो अब रहेंगी। लेकिन यह है कि ऐसी भी कोई मायूसी भी नहीं, कुछ हैं ऐसे लोग जो इस लेगेसी को लेकर निकले, वो अपने अपने तौर पे कर रहे हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, कम है लोग, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो आप अपने बच्चों को खुद मोटिवेट, उसको वक्त दीजिए। वो तो आपको अपने अब्बा को नहीं पढ़ पा रहा, किताब कहाँ से पढ़ेगा वो अपने? वो जो इतना 10 किलो का बस्ता रोज सुबह उठा के आप उसको प्रेप में और उसमें भेज रहे हो, उसको बता रहे। बच्चों को रिलीफ दे, उनके साथ जुड़े। आप जो कुछ कमाई कर रहे हैं, जो कुछ करेंगे उन्हीं के लिए, उनका हक आपको करना चाहिए। लेकिन जब अनड्यू एक दौड़ में चले जाते हैं तो उसमें फिर उसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं ना, वो फिर कुछ ज़्यादा टाइम इज वेरी प्रीशियस। जी हाँ, तो अपने बच्चों को वक्त दीजिए। आपने तो बिजनेस पढ़ लिया ना, बिजनेस ही नहीं है दुनिया में सर्वाइवल के लिए। अगले जहां जाके भी सिर्फ यही बैरियर इकोनॉमी और डिफेंस में घर चाहिए, जन्नत में प्लॉट नहीं चाहिए छोटा सा, वो कहाँ से मिलेगा? ये सारा यही रह जाता। जन्नत के प्लॉट के लिए भी आप अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाइए। ये बेटी इनसे मेरी बड़ी पुरानी शनासाई है, इनके बड़ों के नामवर थे वो सारे के साथ। आप कहीं कुछ बीज के जाएंगे तो कल आपको याद रखा जाएगा, कोई वो फल खाएगा। तो किताब में बहुत शुक्रिया, तुम अच्छा बड़ा नुमान बड़ा एक एक्सक्लूसिव सा वो सब्जेक्ट जो है उसको रखते हो और उस पर हम, वरना यह है कि हम गिमिक्स बेस्ड लोग हैं। मैंने ये किया था, मैंने एक दफ़ा का जिक्र किया होगा, लम्हा मौजूद पे क्या कर रहा उसका बता मुझे। मैं उर्दू बाजार के दानिशवरों को नहीं मानता बेटी। मेरे दादा इस सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान बनने से पहले कश्मीरी कास्ट वाइज जम्मू कश्मीर से मेरे आबा करता था, उस्ताद गुलाम मोहम्मद नक्काश। सारी दुनिया में आज भी कालीनों की डिजाइनिंग की नक्काश नाम की चीज़ है, मैं उसका पोता हूँ। मेरे फादर लिखारी, इस मुल्क के प्रोग्रेसिव अमृतसरियों का जो टोला जिसमें बहुत बहुत बड़े मंडो साहब का भी नाम है, साहब लुधियानवी, जहीर काश्मीरी वगैरह वगैरह वगैरह, नाजिर काश्मीरी, मैं उनका बेटा। कोशिश मैं उन जैसा तो नहीं बन सका अपने बाबा और अपने दादा की तरह, लेकिन कोशिश की कि मैं अपने शोबे में रह के भी अपने रब को भी राजी रखूँ और अपने लोगों को भी। जो मेरे इख्तियार में था वो कर रहा हूँ, करता रहूँगा। आप में से कुछ बच्चे मुझे नहीं जानते हो, मेरे छोटी उम्र के, तो आप सबको अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ एक शेर से कि अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं। जान साहब, अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं।
मैं जब आया थी यहाँ ताज़ा हवा लाया था। थैंक यू। अच्छा एक और के बाद ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है जिससे पूरी दीन और दुनिया कंप्लीट है। 16 वॉल्यूम ऑस्कर बर्ट्रैंड रसल मैक्सिम गोर्की सबने पढ़ा हुआ, हमको पढ़े लिखे सबने पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा हुआ। 16 हमने अपने बाबों को नहीं पढ़ा है, ना हमारे निसाब में शामिल। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने 2 मिसरा एक शेर है कि उच्चा ना रखाया जिसलिए चुल्हे दे विच सड़िया। अनड्यू सट लगा ली ना कि मैं मिर्जा गालिब। उच्चा ना रखाया जिसलिए चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा होके लंग मोहम्मद लंग जाएगा। गर्दनों से ये सरिये निकाल दीजिए, दूसरों को मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत मिलेगी, यही एक ज्यादा बड़ी बात। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। ये NMN को की जो फाउंडर है वो भी तशरीफ लाए, डॉक्टर फाइजल जरीन साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। वो इकबाल से किसी ने पूछना, इकबाल आज देर से आए तो फरमाया इकबाल देर से आए। तो ये लेकिन उनके अपनी अपनी मसरूफियात में क्योंकि बहुत